Hello and welcome everyone. So today we are entering into the chapter number 4, pre-primary education importance and foundation. So till now we have understood what is education, how education came into existence, what is the need and importance of education, and how education has been developed globally all over. And when we have spoken about India, we understand that the global education plays a very important role. हम लोगों ने अब तक प्री प्राइमरी एजुकेशन को समझा था, जहां पर हम प्री प्राइमरी एजुकेशन एजुकेशन को समझा था, जहां पर हमने ये जाना कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन जो है उसकी क्या नीड्स हैं, और अब तक ग्लोबली एजुकेशन ने क्या क्या महारत और महत्ता हासिल करी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्री प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या जरूरतें हैं, और प्री प्राइमरी एजुकेशन में यानी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में हमें क्या क्या चीजों पर फोकस और ध्यान रखने की आवश्यकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ पर देखिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 3 से 6 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए होती है। ये वो टाइम पीरियड है जहां पर एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल और कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग पर फोकस करता है। ये वो स्टेज है जहां पर बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, और यहाँ पर जो बच्चा है उस पर फोकस किया जाता है इसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, बच्चे को ये चीज समझ में आती है कि इसका एकेडमिक ग्रोथ और इसकी फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल। ठीक है, यहाँ इनके कारण ही जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। राइट। सो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड द होलिस्टिक डेवलपमेंट पैरामीटर्स विच आर द कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। Let us understand this one by one. When we talk about the cognitive development is nothing but the mental development and the brain development of the child. It is very receptive. In the early years, the brain of the child is very much receptive towards whatever is there in the environment. The small child absorbs whatever all the things from the environment. छोटा बच्चा जो है उनके environment से बहुत सी चीजों को adapt करता है। When we talk about the early childhood education, here the educational opportunities develop different types of critical thinking, problem solving and creative activities. यहाँ पर क्या होता है कि early learning जो है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ऐसी एक्टिविटीज पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक्टिविटीज सच एज स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज हो गई, पजल्स हो गया, इंटरैक्टिव गेम्स हो गया, ये सारी चीजों पर बच्चों के बौद्धिक विकास या बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। Next is social and emotional development. In the pre-primary stages, when we talk about the different developmental, emotional, essential, and social skills, the cooperation, empathy, sharing, communication, these are the emotional and the social skills which develop. सोशल और इमोशनल हमेशा क्यों एक साथ जुड़े हुए होते हैं? बिकॉज अनलेस देर इज नो सोशल बैकग्राउंड, द इमोशंस विल नॉट कम. What is the emotion going to do? And if there is no one, we feel emotions for the another person, right? So we have to be social to develop the emotional development. So social and emotional development go hand in hand. If there are no emotions, there will not be any social bonding, and if there is social bonding, emotions have to be there. Okay, so it's very very important that both should go hand in hand. So now let us understand the emotional parameters. When the teacher is understanding the emotions, the teacher has to focus on different types of emotional aspects. The cooperation, empathy, sharing, and different types of communication skills are enforced by the child, and the teacher understands that. In reverse, the child may also have that emotions such as anger, happiness, frustration, and different types of emotional intelligence related activities. So these should be understood by the preschool or a pre-primary teacher. Then for a pre-primary education, the school readiness program is very, very important. The school readiness program develops a formal schooling where FNL is important as per 21st century. FLN is foundation literacy and numeracy.
It has been said that the FLN has to be engaging, has to be playway, has to be with the playway approach. That means with the fun and engaging activities. Please wait. There's a call. What happened, ma'am? There was a call, ma'am. So I muted. Yes. So Okay, ma'am. so let us continue with. I was talking about FLN. FLN is Foundation Literacy and Numeracy in the 21st century as per NEP. The FLN, Foundation Literacy and Numeracy, is very, very important. So to excel the child with the fun and the multisensory activities, the school readiness program has to be conducted, and for that pre-primary education plays a very important role. प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एफएलएन पर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यहाँ पर एफएलएन का मतलब होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जब हम फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे को डेवलप करना होता है उसका एटीट्यूड स्कूल रेडीनेस के लिए। छोटा बच्चा जो है 3 से 6 साल तक की उम्र का बच्चा, उसके अंदर काफी ज्यादा जिज्ञासा और काफी ज्यादा प्रश्न होते हैं। बच्चा बहुत ज्यादा इंक्वायरी करता है और बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, उसके मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है। तो इसकी एकेडमिक सक्सेस तभी होगी जब ये स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को मैनेज करेगा। नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमने अभी पिछले ही सेशन में सीखा था कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग वो एस्पेक्ट है जहां पे हम जीवन पर्यंत सीखते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है किसी भी व्यक्ति को सोशल मोबिलिटी की तरफ लेके जाता है। हमने हमारे एजुकेशन के पिछले एस्पेक्ट्स पर समझा था कि सोशल मोबिलिटी क्या होता है। सोशल मोबिलिटी वो है जहां पर हम लोअर सोशल स्ट्रैटम से हायर सोशल स्ट्रैटम तक जाते हैं और वो एकेडमिकली सक्सेसफुल व्यक्ति को बनाता है, और उसका जो सोशल कास्ट है, वो क्लास है, वो लोअर क्लास से हायर क्लास पे पहुंचता है एजुकेशन के माध्यम से। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बच्चे का कॉग्निटिव एबिलिटी और एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी इमोशनल वेलबींग पर होते हुए चाहे। ठीक है। So when we talk about the lifelong learning and academic success, we understand that it is very, very important for the social mobility. Social mobility, as we understand that social mobility is moving from the lower social stratum towards the higher social stratum. In the early year, it is considered that the brain development happens more and education helps it in a very crucial way. When we talk about the cognitive abilities, the academic performance, and the lifelong learning of the child, it happens with the different types of societal benefits. When we talk about the societal benefits, it is understood that the social stratum is moving from one lower class towards the higher class in the social mobility by the means of education only, and for that the pre-primary education plays a very important role. Now let us understand the economic and the social benefits. When we talk about the economic and social benefit, it is something where the individual child, but also towards the broader and the numerous aspects. Many of the studies have understood that the significant returns on the investment has focused on the many different areas. Okay. When we talk about the different areas, it is focused towards different types of educational aspects. Early interventions has made the remedial educational life, saving different families, saving different governmental bodies, saving different types of children, like there are inclusive setup in all over the country. So economic and the societal benefits have helped them in multiple ways. Okay.
Now, next is holistic development. Holistic development, as we have discussed earlier, when the physical, cognitive, social, and emotional growth of the child happens, the holistic development is there. And pre-primary education promotes the holistic approach towards the child. It addresses towards different types of activities, like physical activities happens in the pre-primary educational bodies. Then the motor development happens, the cognitive development happens, social and emotional growth happens. And this is very, very important for a child towards the growth and development, and it is the life skill which everybody must attain at the early age, and pre-primary education plays a very important role under this. The early identification of the learning is in their developmental delays. So if the child is learning something, the teacher, the pre-primary educator understands that yes, the child has received some type of learning, and that early identification is given by the pre-primary educator. Similarly, if there are developmental delays, that is also identified by the pre-primary educators. So early interventions and early identifications help the caregiver, helps the parent, and helps the teacher also to understand the child in a very authentic way, and we can understand the child's life term, that we can understand the child's long term of educational outputs with this type of education. And that is why we can say that the knowledge, the attitude is very, very important during the early childhood education and the pre-primary progress. सो हम ये समझेंगे कि जो बच्चों के सर्वांगीण विकास होते हैं, हमने इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स को तो समझ लिया था, बच्चे के सर्वांगीण विकास जो है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षक के अनुसार ही समझ में आती है। को जो भी पूर्व प्राथमिक शिक्षक होता है वही ये बताता है कि किसी भी बच्चे की बौद्धिक विकास, किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास, किसी भी बच्चे का सामाजिक विकास और किसी भी बच्चे का भावात्मक विकास तभी हो रहा है। और जब वो प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन पर पहुंचता है तभी उसकी जो आंतरिक शक्ति है, उसके जो लाइफ स्किल्स है, उसके आगे जो उसके जीवन में आवश्यकता है, वो उसको अर्ली एज में यानी शुरुआती दौर में ही उसे मिल जाती है अगर उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्री प्राइमरी एजुकेटर मिलता है। और इसी के साथ साथ में अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली डेवलपमेंटल डिलेस को भी एक प्री प्राइमरी एजुकेटर यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को समझने वाले टीचर को समझ में आ जाता है। इसीलिए प्री प्राइमरी एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पर यह चीज समझ में आती है कि अगर कोई बच्चा किसी भी चीज को सीख रहा है तो प्री प्राइमरी एजुकेटर जो है उसको मार्कआउट करता है कि बच्चा ये चीजें कर लिया है और इसकी इतनी इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी है। वहीं इसका उल्टा, अगर कोई बच्चा इन डेवलपमेंट्स को अपने सही समय पर और सही अवस्थाओं पर पार नहीं कर पा रहा है तो वहां पर उसको हेल्प और सपोर्ट दी जाती है और उसको उस लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो इस चीज को भी अर्ली टाइम पर ही अगर पता चल जाएगा तो ये बच्चे के लिए काफी ज्यादा प्रभावी होता है। तो निष्कर्ष इसका ये है कि अब तक हम लोगों ने ये समझा था कि प्री एजुकेशन क्या होता है। आज हमने ये समझा है कि एजुकेशन जो है एक प्री प्राइमरी लेवल पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे जहां पर बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक और शारीरिक विकास जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बौद्धिक विकास एक प्री प्राइमरी एजुकेटर को अच्छी तरीके से बच्चे को कराना होता है, जहां पर उसकी थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी एनहांस होती है अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से। फिर हमने ये समझा था कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे के पूरक है। अगर व्यक्ति सामाजिक लोगों से नहीं जुड़ेगा तो वो उसके अंदर किसी के लिए भी भाव यानी भावनाएं जो हैं वो नहीं जुड़ेंगी। इसीलिए भावनाओं के जुड़ने के लिए सामाजिक होना जरूरी है, और अगर सामाजिक है तो भावनाएं अपने आप आ सकती हैं। इसीलिए सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। काफी भावनाएं हैं, जैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, अपनी भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को शेयर करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना। इसी के साथ साथ में कुछ नेगेटिव इमोशंस लाइक गुस्सा करना और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना, अपनी चिड़चिड़ाहट और इरिटेशन को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, ये भी अपने भावनाओं का ही रूप है। तो ये जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तभी ही समझ में आएगा। इसके बाद स्कूल रेडीनेस, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चे को आगे की फॉर्मल स्कूलिंग के लिए तैयार करता है, जहां पे FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है उस पर फोकस किया जाता है। फाउंडेशन लिटरेसी मतलब जो बेसिक बच्चे को सिखाना होता है, अर्ली लिटरेसी प्रोग्राम्स को प्री प्राइमरी एजुकेशन के माध्यम से ही किया जा सकता है। ये वो उम्र के बच्चे हैं जहां पर क्यूरियोसिटी और इंक्वायरी बहुत ज्यादा बच्चों के मन में होती है, तो इसीलिए ये चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये लर्निंग लाइफ लॉन्ग होती है, इसके लिए इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स बहुत होता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अर्ली आइडेंटिफिकेशन और लर्निंग तभी हो पाएगा जब एक प्री प्राइमरी एडुकेटर और एक प्री प्राइमरी टीचर जो है इसको काफी ज्यादा हेल्पफुल और सपोर्टिव रखेगी। एक प्री प्राइमरी टीचर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडेबल हो सके। इसीलिए यहाँ पर हमें ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वहां पर हम थियोरीज करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की थियोरीज। मंडे, अगर हमारा मंडे शायद मेरे को थोड़ा सा काम है, आई एम ऑन लीव ऑन मंडे। अगर क्लास नहीं हुई मंडे को तो ट्यूसडे को होगी। लेकिन जो भी हमारा नेक्स्ट पार्ट है थियोरीज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से और एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एडुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी थियोरी एक टीचर को पता होना ही चाहिए। अगर आप किसी से भी कहते हो कि मैं बीएड कर चुकी हूँ, मैं डीएड कर चुकी हूँ, मैं ईसीसी कर चुकी हूँ, मैं एनटीटी कर चुकी हूँ, और अगर आपको पियाजे के बारे में नहीं पता, अगर आपको एरिक्सन के बारे में नहीं पता है, और अगर आपको ये 7 थियोरीज के बारे में नहीं पता है, इसका मतलब आपकी डिग्रीज जो है वो पूरी तरीके से वेस्ट है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये थियोरीज को आप काफी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर हमारी इस क्लास को ज्वाइन करें। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो वीडियोस को जरूर ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, क्योंकि एक श्योर क्वेश्चन आता है। और एज ए टीचर एंड एज एन एजुकेटर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क।